you formally Krishna Bhajan Prabhu? Yes. Wait a minute, don't start online here. Please do some kirtan, 5 minutes kirtan. Huh? I'll again join you. Do some 5 minutes kirtan, I'll join you again. Okay. Okay, Kaustubh Prabhu, you can start. And yes. Who will give me chorus? I'll give Prabhuji. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Nittai Gauranga, Gaur Hari. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaur Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Gaur Hari. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaur Hari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Krishna Bhajan Prabhu has come. Okay. Thank you, Mataji. Thank you. Very good chorus. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna, Hare. आज आपका है क्या लेक्चर? नहीं, मैं वीडियो में नहीं आ रहा ना वैसे। नहीं, आप नहीं आ रहे। हरे कृष्णा, हरे लीला Manu Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah. Bhajan Prabhu has, Krishna Bhajan Prabhu has come. Please unmute him. 1 second. Okay. Krishna. Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Prabhuji, unmute. Hare Krishna. Hare Krishna. आनंद लीलामय विग्रहाय हेमांबरदिव्याक्ष विसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नाम श्रेष्ठं मनोमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रज गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुन्दं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्याम प्राप्त यस्य प्रतीत कृपया श्री गुरु तं तोस्ति। हरे कृष्णा। Hare Krishna. सब लोग मेरे पीछे बोलिए, अनम्यूट करें सबको। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी म्यूट हो गए थे। Because you muted me. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री चैतन्य चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंदा। तो मैं आप सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का, रसिक श्रोता जनों का चैतन्य चरितामृत के इस बहुत महत्वपूर्ण सत्र में गुरुवार के सायंकालीन गौरीला कथा समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। कौस्तुभ कृष्ण प्रभु और लीला मनोहर और बाकी सभी भक्तों का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। और खास करके मेरे एक पुराने मित्र यहाँ पर गांव से उपस्थित है, महेश पोद्दार। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, वो रायगढ़ में है, रायपुर में है, बैंगलोर में है, गुजरात में है या गांव में है, वो पोद्दार साहब भी इधर प्रकट हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और भगवान श्रीमन गौरांग महाप्रभु के बारे में कुछ कथा करने का अवसर दिए, इसलिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। तो हम पिछले कई गुरुवार से चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में। जैसे चैतन्य चरितामृत की रचना हुई और उसके मंगलाचरण इत्यादि विषय में हमने चर्चा की है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जीवन चरित्र भी हम कुछ अंश तक चर्चा किए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, कारण क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले गुरुवार को ये चर्चा किए थे कि कैसे, कई गुरुवार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, इसकी प्रस्तावना में 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में रखे हैं। और इन 14 श्लोकों का हम विवेचन कर रहे थे कि कैसे पहले 2 श्लोकों में पहला अध्याय है और जो तीसरा श्लोक है यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदय, श्लोक लिखा है प्रभु जी। प्रभु जी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ प्रभु जी, सबको म्यूट करके हाँ उसके बाद अनम्यूट करते हैं आपको। हाँ काइंडली अनम्यूट। तो हमने पिछले गुरुवार को चर्चा किए थे चैतन्य चरितामृत के जो मंगलाचरण है उसके विषय में, और मंगलाचरण के 14 श्लोक है, उसमें से दो श्लोक है, वो श्लोकों में पहला अध्याय पूरा हो जाता है। वंदे गुरुन ईश भक्ता ईशावतारकार तत्शक्तिम तत्प्रकाश श्री चैतन्य संपन्नकम, यह पहला श्लोक है। और दूसरा है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़द्वय पुष्पवंतु चित्र चंद्र समूह। इन 2 श्लोकों का विवरण पहले अध्याय में विस्तार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। अभी जो तीसरा श्लोक है इसके बारे में हमने पिछले गुरुवार चर्चा किए थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एते च अंश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक मृडयन्ति युगे युगे। यह जो भगवान श्री कृष्ण है इनके अनेक नानाविध अवतार हुए हैं। कैन यू शो दैट डायग्राम व्हिच आई गिव यू लास्ट टाइम? हाँ 1 सेकंड प्रभु जी। हाँ जल्दी। Yes. तो कैसे भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है, उन्हीं से बलराम आते हैं और उन्हीं बलराम से युगावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार इत्यादि सारे नाना विविध अवतार प्रकट हो जाते हैं बलराम भैया से। और श्री कृष्ण भगवान से रासलीला में और द्वारिकाओं के रानियों के साथ विवाह करने वाले कृष्ण हैं, वे स्वयं प्रकाश, उनके स्वरूप के अवतार प्रकट होते हैं। ऐसा कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार है? अवतारा ही असंख्यानाम हरे सत्वद्विजेविधा। हे द्विज श्रेष्ठ शौनक ऋषि, शौनक ऋषि को सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के अनंत सारे ऐसे अवतार है, एक नहीं है। भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। अब असंख्य का मतलब क्या है पता है?
असंख्य का मतलब है एक के ऊपर 17 से ज्यादा जीरो जब आते हैं तो उसको कहते हैं असंख्य। भगवान राम की सेना में बंदर कितने थे? भगवान राम की सेना में बंदर कितने थे? असंख्य। जितने जुहू के समंदर बीच पे लहरें आते हैं उससे कई ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। उससे कई ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के अवतार आते हैं। हरे सत्व द्विजेय अवतार ही असंख्याना। संख्या मतलब जहां तक आप गिन सकते हो, उसके आगे आप गिनना बंद कर दे तो गिन ही नहीं सकते। कोई कंप्यूटर, कोई सुपर कंप्यूटर या कोई जो सुपीक हमारा मस्तिष्क है उसको गिनती नहीं कर सकता, गिनती नहीं कर सकता, उसको कहते हैं असंख्य। अवतारा ही असंख्यानाम हरे सत्व द्विजेय। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जो है राम का अवतार है, विष्णु का 8वां अवतार है, फलाना विस्ताना। ये सब हम टीवी के ऊपर धारावाहिक में यहां से ज्ञान प्राप्त कर आधा अधूरा ज्ञान लेकर दुनिया के सामने प्रकट करने आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने पिछले गुरुवार को चर्चा किए थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से ही हम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। 21 प्रकार से देखो, हाईलाइट करो, कम फ्रॉम द कृष्णा, अप अप ओरिजिनल कृष्णा, या कम डाउन, ऊपर से नीचे आओ, पहले ऊपर जाओ, ब्रिंग हिम इन द मिडिल। हियर हाँ, वो मूल स्वयं कृष्ण है, हाईलाइट करो ना उसको। कैन यू जूम इन? जूम नहीं कर सकते हम लोग। हाँ ठीक है, वो मूल कृष्ण है। उनसे 2 प्रकार के अवतार निकले, एक बलराम, उस तरफ बलराम है देखो। हाँ दिस वी कैन लिटिल बिट। हाँ, वो आप कर सकते हो। हाँ वही तो बोला मैं। हाँ, ये बलराम दादा है, ये है वैभव प्रकाश, मतलब भगवान का वैभव है, उनका यह अवतार रहता है। वैसे ही शक्ति रहती है, सब कुछ रहती है, और उनसे भी अलग अलग अवतार आता है। एक है प्राभव विलास, मतलब वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इनसे अनंत कोटि वैकुंठ भरे हुए हैं। कितने वैकुंठ है? अनंत कोटि वैकुंठ। केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड है ऐसा नहीं है, अनंत कोटि वैकुंठ भी है। इनसे आते वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और एक आता है, इनका स्वांश विस्तार होता है भगवान बलराम का, उसमें आते हैं लीला अवतार। जो हम दशावतार स्तोत्र गाते हैं जयदेव गोस्वामी का, वो सब लीला अवतार का वर्णन है। केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृता कुर्म शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे, केशव धृता नर हरि रूप, ये सब लीला अवतार में आते हैं। और उसके बाद है पुरुषावतार, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और शिरोदकशाही विष्णु। उसके बाद है ये जो गुण अवतार है, ब्रह्मा विष्णु और शिवा, ये आते हैं। उसके बाद है शक्त्यावेश अवतार, इसमें भी 2 है, विभूति और शक्ति, ये भी भगवान से आते हैं। मनवंतर अवतार, ब्रह्मा जी के एक दिन में 43,20,000 ईयर्स होते हैं, तो इसमें 14 बार मनु आते हैं, 14 बार भगवान अवतार लेते हैं। एक मनु का कालखंड है 71, 71 चतुर्युग, तो 71 टाइम सत्ययुग आता है, द्वापर युग आता है, त्रेता युग आता है, कलयुग आता है। 71 टाइम्स, 71 इंटू 14, उतनी बार भगवंत प्रकट होते हैं। मनवंतर अवतार और है युगा अवतार, हर युग में एक बार प्रकट होते हैं। ठीक है, तो यही चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग के युग अवतारी है। ठीक है, अभी युगावतार का समय होने वाला था, युग अवतार का समय होने वाला था, अभी कलयुग का अवतार प्रकट होने वाला था। कलयुग के प्रथम संध्या में पहले बुद्ध भगवान आए, और उसके बाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए कोई एक अवतार आने वाला था, स्वांश बलराम के यहां से। लेकिन उसी समय क्या हुआ, मूल कृष्ण भगवान आ गए, ऊपर वाले, ऊपर जो मूल कृष्ण है वो आ गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
युगावतार के रूप में वो श्री कृष्ण युगावतार में आ गए। गेट इट हियर, लास्ट युगावतार में लाओ कर्सर। वो कृष्ण यहाँ डायरेक्ट आ गए। तो वो कैसे आए, क्या आए, वो कृष्ण कौन है, दूसरे अध्याय में बोला गया है। और कृष्ण कैसे प्रकट हुए, उनके क्या क्या कारण थे, उसका वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में किया है। तो हम आज उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जागते रहिए। अगर नींद आ रहे तो बोलो हरि हरि। हरी हरी। हाँ, प्रामाणिक लोग है। चलो प्रभु जी, श्लोक संख्या 4, 5 और 6 दिखाओ, पहले अध्याय का। चैतन्य चरितामृत श्लोक Yes. संख्या 4। 4, 5 और 6। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, आदि लीला, वापस चलो, पहले से चलो। I'll go up. Just 1 second. कलयुग के बुद्धि के कारण हम इतने कलुषित हो जाते हैं, कई सारी चीजें भूल जाते हैं। श्लोक का है, हाँ। कम टू द फर्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे गुरु ईश भक्तान ईशावस्तारकान तत्प्रकाशं से तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। और दूसरा श्लोक दिखाओ, नेक्स्ट। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ध्वजे पुष्पवन्तौ चित्रौषन्तौ तमोनुरो। मैं उन श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करता हूं, जो गौड़ की क्षितिज पर एक साथ चंद्रमा और सूरज के भांति प्रकट होकर इस कलयुग का अंधकार नष्ट कर रहे हैं। ऐसा कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। और ये जो पहला और दूसरा श्लोक मिल करके इसका विस्तार से वर्णन, मतलब पहला अध्याय है। पूरा जो पहला अध्याय ये जो है, ये पहला अध्याय 2 श्लोकों का विवरण करता है। अभी तीसरा श्लोक, ये जो हमने अभी देखा है, स्वांश, युगावतार, कार्मोदकशाही, लीला अवतार, मनवंतरावतार, वैभव विलास, प्रभव विलास, वासुदेव संकर्षण, सारे के सारे अवतारों का वर्णन इस एक श्लोक में है। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदे तद अप्य अस्य तनुभा या आत्मांतरयाम पुरुष इति सो शांस विभवा शल ऐश्वर्य पूर्यो यह भगवान स स्वयं अयम न चैतन्य कृष्णा जगत पर तत्वम परम इहा। जिनको उपनिषदों में अद्वैत ब्रह्म कहा गया है, जिनको परमात्मा भी कहते हैं, और जो सारे अवतारों के स्रोत है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं, जिनके ऊपर और कुछ रहे नहीं जाता। परम तत्वम परम इहा न चैतन्य कृष्णा, चैतन्य कृष्ण के ऊपर और कुछ है भी नहीं। इस तीसरे श्लोक में जो हमने जो अभी पिक्चर दिखाया आपको सारे अवतारों का, वो सब वर्णन आ जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से सब कुछ प्रकट होता है, कुछ नहीं रहता। अभी वो कृष्ण भगवान क्यों प्रकट हुए, कारण क्या था, चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, इसका उत्तर जो है चौथे, पांचवें और छठे, 3 श्लोकों में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे। दिखाइए 14 श्लोक। Yes, ma'am. अनार्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितु उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब स्तंदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत भास चिनंदन। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े बड़े विद्वान पंडितों और महाभागवतों के साथ साधु मठाचार्य रामानंद राय, स्वरूपदास गोस्वामी इत्यादि बड़े बड़े भक्तों के साथ सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर के यहाँ श्री रूप गोस्वामी की परीक्षा ले रहे थे कि उनको कुछ आता है या नहीं, वो कितना पढ़े लिखे हैं आध्यात्मिक ग्रंथ सार में।
तब उस समय उन्होंने कई सारे कठिन जटिल प्रश्न पूछे प्रकांड पंडितों ने, और उसमें श्री रूप गोस्वामी उत्तीर्ण हो गए। तो उस समय रामानंद राय ने उनको इष्ट देव प्रणाम मंत्र पूछा, तो उन्होंने यह श्लोक कोट किया था, अनार्पित चरिम चिरात करुणया उत्तीर्ण कलौ समर्पयितु उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरि पुरुट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंधरे स्फुरत वह श्री सच्चिनंदन। रूप गोस्वामी के दो नाटक है, विदग्ध माधव और ललित माधव। ये विदग्ध माधव की प्रस्तावना का नाटक है जो वरदान देने वाला है, और उसका ये श्लोक है। इस श्लोक का मुख्य अभिप्राय है इष्ट देव को प्रणाम। जब चैतन्य महाप्रभु और सारे पार्षद रूप गोस्वामी को पूछ रहे कि रूप आप बोलो आपका इष्ट देव प्रणाम मंत्र क्या है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सामने ही बैठे थे, ये देख कर लज्जावश बोल नहीं रहे थे। और महाप्रभु बारंबार उनको उकसा रहे थे, रूप बोलो ना, क्यों शर्मा रहे हो। तो बहुत उनको जबरदस्ती करने के बाद रूप गोस्वामी श्लोक बोले। क्या श्लोक का अर्थ क्या है? अनार्पित चरिम चिराग, कि जो कृष्ण प्रेम कई युगों तक नहीं दिया गया, करुणया अवतीर्ण कलो, वह करुणा के वश अभी प्रदान करने के लिए कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। कौन? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियाम, जो उन्नत उज्ज्वल रस है, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहां ब्रजते प्रचार। ये जो उन्नत उज्ज्वल रस है, वृंदावन का गोपियों का भाव, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भाव है। यह भाव स्वभक्ति श्रिया, उनके प्रति की भक्ति का भाव, कृष्ण के प्रति का भक्ति का भाव, इसको प्रदान करने के लिए आए हैं। कौन? हरि पुरुट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, ये जो हरि है जिनसे सारे अवतार आते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण, वे कदम्ब जैसा रंग धारण करके, मतलब राधा रानी का रंग धारण करके, राधा रानी के अंग कांची परिधान करके प्रकट हुए हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु आप सभी के हृदय में निवास करो। तो इस श्लोक से वे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने के कारण बोल रहे कि वो कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं। अनार्पित चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण करो। तो ये तीन प्रमुख बाह्य कारण थे, चैतन्य महाप्रभु के तीन बाह्य कारण थे और तीन अंतरंग कारण थे। ठीक है, तो पहले दो श्लोकों से पहला अध्याय पूरा हो जाता है। अब तीसरा जो श्लोक है उससे दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और जो तीसरा अध्याय है आदि लीला का, ये चौथे श्लोक पर निर्भर है। ये चौथे श्लोक का पूर्ण रूपेण निरूपण, विवेचन और विवरण का मतलब है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का तीसरा अध्याय। उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के तीन बाहरी कारण, तो वो कौन सा है? एक है युग धर्म का प्रचार करना, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सत्ययुग में ध्यान किया जाता था भगवान की प्राप्ति के लिए, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, और द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की जाती थी, और कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तना। तो कलयुग का युग धर्म है, उनको हरि कीर्तन से उनका उद्धार किया जाता है। जो कलयुग के सिलेबस से पास नहीं हुए त्रेता युग में रहते, जो त्रेता युग में पास नहीं हुए द्वापर युग में आ जाते हैं, जो द्वापर युग में पास नहीं हुए वो जो लास्ट कचरा है वो कलयुग में रह जाते हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए हरिनाम ये सिलेबस है। जैसे पाठशाला का सिलेबस 10-15 साल में बदल जाता है, उसी तरह से हर युग में भगवान के प्राप्ति का सिलेबस बदल जाता है। तो कलयुग का सिलेबस है भगवान का नाम कीर्तन करना। तो हर कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, भगवान का कोई एक स्वांश आकर अवतार आके प्रचार करता है। तो उस समय
भगवान के अवतार का समय हो गया था, युग धर्म का अवतार हो गया था, मतलब समय हो गया था। ये एक कारण है, युग धर्म प्रचार करना, हरि नाम का प्रचार करना। और क्या है, अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जो है वे महाविष्णु जगत कर्ता, वे महाविष्णु है। यः कारणार्णव जले भजति स्म योग, निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप, आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्तिं, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलंब्य, जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा, विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन महाविष्णु को प्रणाम करता हूँ जिनको सांस लेने से, बाहर छोड़ने से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और अंदर लेने से ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है। और ये जो महाविष्णु का सांसों का कालखंड है वो ब्रह्मा जी की जीवन अवधि है। और इनके भी आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्ति, इनके जो आधार शक्ति परा स्वमूर्ति है भगवान गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो वे महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं और वे कलयुग की इतनी दयनीय पापी अवस्था देखकर बहुत व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगते हैं कि आप प्रकट हो जाइए। और ऐसा कहकर वो गंगा जल तुलसी के साथ शालिग्राम भगवान को अर्पण करते हैं। गौतमी तंत्र से एक श्लोक पढ़कर, तुलसी जलमात्रेन जलस्य चुलुके नवा, कि तुलसी दल और गंगा जल लेकर अगर हम शालिग्राम की पूजा करें तो वो पूजा सर्वश्रेष्ठ हो जाती है और अब जो मांगोगे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने क्या मांगा, हम मांगेंगे तो बोलेंगे 1 BHK का 2 BHK होने दो, 2 BHK का 3 होने दो। अभी मेरे पास एर्टिगा है, उसके इनोवा होने दो, होने के बाद आउडी आने दो, आउडी के बाद चावड़ी आने दो, फिर उसके बाद मर्सिडीज आने दो। ऐसा लगता है हमें, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन अद्वैत आचार्य का क्या था, भगवान प्रसन्न होने चाहिए, भगवान आइए लोगों को उद्धार करिए। दूसरा कारण था युग धर्म और अद्वैत आचार्य का प्रार्थना है। और तीसरा कारण क्या था भगवान के प्रकटीकरण का, कृष्ण प्रेम बांटना। यही तो है, समर्पित तो उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया, उनके प्रति जो उन्नत उज्ज्वल रस, गोपियों का प्रेम भक्ति का जो रस है, इसके पहले लोग करते थे, नारायण की भक्ति करते थे, वैकुंठ में जाते थे, बाकी सब कृष्ण की भक्ति करते थे। लेकिन उन्नत उज्ज्वल रस से, गोपियों के प्रेम भाव से, जय जय जल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहां ब्रजते प्रचार, गोपियों के जो भाव है, गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है परकीय रस का, उसको शास्त्रों में कहा है उन्नत उज्ज्वल रस। उससे बड़ा कोई और भक्ति भाव है नहीं। आराध्यो भगवान ब्रजेश नया तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रजवधू वर्जेन वा कर्तुता। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतयुक्तम तत्राधारणा परः, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम कुमर्थो महान। ये जो प्रेम कुमर्थो है, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, ये गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम करती थी, कृष्ण गोपियों के प्रति प्रेम करते थे। लेकिन आम जनता को इसकी अनुमति नहीं। यहाँ आम जनता तो छोड़ दो, पापी तापी लोग तो छोड़ ही दो, उनकी तो बात ही दूर, वैकुंठ वासियों को भी अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी देवी को अनुमति नहीं है। जब नारायण की पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी भार्या महालक्ष्मी देवी, इनकी इच्छा हुई कि मुझे भी रासलीला में उन्नत उज्ज्वल रस गोपियों का जो भक्ति भाव है वो मुझे भी चखना है करके वो आ गई वृंदावन में, श्रीवन में, देववन में आज भी तपस्या कर रही है। फिर भी उसको गोपियों का उन्नत उज्ज्वल रस प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उसको बोले जाओ तुम गायों की सेवा करो, गोबर उठाओ, गौमूत्र साफ करो,
गैया का दूध निकालो, ये सब कार्य करो गोपियों की तरह, उनका दास बनो गोपियों का। लक्ष्मी बोली ऐसे कैसे, मैं वैकुंठ की महारानी, सारा ऐश्वर्य मेरे चरण छूता है और मैं कैसे ये ग्वालन की दासी बनूं। तो वो महालक्ष्मी को अहंकार आया। तो आज भी वो तपस्या कर रही है वृंदावन के बेल वन में, जिसको श्रीवन कहते हैं। उनका मंदिर है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। उनको प्रवेश नहीं। ये जो उन्नत उज्जवल रस है, कर्मी लोग तो छोड़ दो, पापी तापी तो दूर की बात, लेकिन वैकुंठ वासियों को भी उपलब्ध नहीं है। वैकुंठ वासी तो बाद में वैकुंठ की महारानी को उपलब्ध नहीं है, उनको भी छोड़ो, महाविष्णु को स्वयं को उपलब्ध नहीं है। जब अर्जुन द्वारिका में थे तब एक ब्राह्मण वहां पर आकर उग्रसेन महाराज और द्वारिका तो श्री कृष्ण को दोष दे रहा था। और हम लोग वो कहानी जानते हैं कैसे अर्जुन प्रतिज्ञा करते, बाण से पूरा किला बनाते, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र जन्म लेते ही गायब हो जाते थे। तो ऐसे कई पुत्र गायब हो गए, तो अर्जुन ने बोला कि अगर मैं ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा नहीं करूंगा तो अग्नि में प्रवेश करूंगा, और वो रक्षा नहीं कर पाए। वो रक्षा नहीं कर पाए, तो अग्नि प्रवेश करने वाले तो श्री कृष्ण भगवान के साथ रथ पर बैठ करके वो निकल गए ब्रह्मांड में, बहुत दूर तक, लोकालोक माउंटेन उसके परे चले गए। ब्रह्मांड उसके आगे अंधेरा था, सुदर्शन चक्र आगे जाने लगा प्रकाश देते देते, और उसके बाद वो इस ब्रह्मांड को पार करके महाविष्णु के पास गए। और महाविष्णु बोले कि मैंने ये ब्राह्मण के बच्चे चुराए थे और मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए सब षड्यंत्र किया। कृष्ण भगवान को भी प्रवेश नहीं है, ये महाविष्णु को भी प्रवेश नहीं है। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम, ये जो उन्नत उज्ज्वल रस है ये उनको भी प्राप्त नहीं होता, वो कभी बांटा नहीं जाता। सहसा अनार्पित चिरा करुणया अवतीर्ण करो, लेकिन करुणावश श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी का भाव धारण करते हैं, श्री राधार भावे भी गौरवतार हरे कृष्ण नाम गौरव करिल प्रचार, जब राधा रानी का भाव श्याम सुंदर श्री कृष्ण धारण करते हैं, तो राधा रानी का भाव, वो तो मैया है, उनका करुणा का भाव उनके हृदय में द्रवीभूत होता है। और वो जो उन्नत उज्जवल रस है, गोपियों का प्रेम, जो सवाकार दुर्लभ प्रेम, जो सबके लिए दुर्लभ है, वो प्रेम जगत है दुर्लभ है या प्रेम धन लूटे, वो जो दुर्लभ प्रेम है उसको बांटा जाता है। क्योंकि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव धारण किया है, और उनके भाव धारण करने के प्रभाव के कारण वे जो उन्नत उज्जवल रस राधा रानी का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, वो बांटते हैं, जो बाकियों को दुर्लभ है। ये उन भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के तीन कारण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक अद्वैत आचार्य की प्रार्थना है, दूसरा युग धर्म, और तीसरा ये जो उन्नत उज्जवल रस है और कोई बांट नहीं सकता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में सारे लोग आते, हनुमान जी रामलीला से आते हैं, उनका नाम हो जाता है मुरारी गुप्ता, नारद मुनि आ जाते हैं, उनका नाम हो जाता है श्रीवास ठाकुर, महाविष्णु आ जाते हैं, उनका नाम होता है अद्वैत आचार्य, वृंदावन दास ठाकुर वो व्यासदेव है वो आ जाते हैं, वासुदेव दत्ता आ जाते हैं, वो तो प्रहलाद महाराज थे। सारे अवतार आए हैं, सभी प्रकार के प्राचीन सारे अवतार, यहाँ तक कि हाल ही के कलयुग के सारे संप्रदाय के आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये सब लोग नवदीप मायापुर आकर ये जो समर्पित उन्नत उज्जवल रस है इसको प्राप्त किए हैं। ये और कोई नहीं बांट सकता सिवाय श्री चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि श्याम सुंदर स्वयं जब राधा रानी का भाव धारण करते तभी इसको बांट सकते, अन्य कभी नहीं। जब वे राधा रानी का भाव धारण नहीं करते तो ऐसा खड़े होते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पहले मेरे को शरण लगाता, बाद में देखेंगे क्या करना है। और ऐसा भी कोई शरणगत आने वाला है ही नहीं। लेकिन जब वो राधा रानी का भाव धारण करके आते हैं तब पात्र पात्र न देखी, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय।
अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र जी दिनों बेलाइया। अधम पतित के जीवों के दरवाजे दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में गिर कर गौर निताई ने कृष्ण प्रेम, राधा रानी का प्रेम बांटा है। इसीलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और सारे आचार्य षड गोस्वामीगण ये क्यों कहते हैं कि सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद, इनके जैसा अवतार कोई हुआ नहीं है। बाकी अवतार आए, शंख चक्र गदा धनुष बाण लेकर असुरों का संहार करने के लिए, लेकिन इस अवतार में श्याम सुंदर जो है अपने भाई संगे भाई अवधूत उनके साथ राधा रानी का प्रेम बांटने के लिए आए हैं। ये तीसरा कारण था चैतन्य महाप्रभु के प्रकटीकरण का। अन्यथा वैकुंठ वासियों को भी गोलोक वृंदावन के रासलीला में प्रवेश नहीं है। यही लक्ष्मी फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला में लक्ष्मी प्रिया बन के आती है। सत्यभामा जो है वो आती है, सीता देवी आती है, सत्यभामा और सीता देवी मिलकर आते हैं विष्णु प्रिया के रूप में। तो ये सारे अवतार लेके आते, कौन क्या था सब ये लोग अवतार लेके आते गौरंग महाप्रभु की लीलाएं, ताकि उनको वृंदावन का जो उन्नत उज्ज्वल रस है, परकीय रस, उसका आस्वादन प्राप्त हो जाए। ये तीन कारण थे अद्वैताचार्य की प्रार्थना, युग धर्म और जो उन्नत उज्ज्वल रस है जो किसी को प्राप्त नहीं होता। जगत ये दुर्लभ है या प्रेम धन लूटे, तो पूरी दुनिया में दुर्लभ है ऐसा प्रेम धन, पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ है, आध्यात्मिक दुनिया में भी दुर्लभ है। ये केवल और केवल गोलोक वृंदावन में उपलब्ध होता है, और वो भी कृष्ण की कृपा से नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। कृष्ण तो खड़ूस है, पहले शरणागत बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मन मना भो मत भक्तो मध्याजिन नमस्कुरु, सब आप करो फिर बाद में देखते मैं क्या करना है। यहाँ पर उल्टा है, चैतन्य महाप्रभु हर के घर दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में गिरकर बोल रहे हैं हरे कृष्ण नाम गौर कौर प्रचार श्री चैतन्य मुखोद्वीर्णा हरे कृष्ण ते वर्ण कहा मत जयंतो जगत प्रेम नाम विजयंता तद अव्यय। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो हर एक के चरणों में गिरकर स्वयं गौरनिताय पंच तत्व भगवान सबको ये उन्नत उज्ज्वल रस बांटने के लिए आए हैं। ये तीसरा कारण है, ये तीन बहिरंग कारण है। अभी आगे श्लोक में 5वें और 6ठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण का वर्णन किया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लाधे शक्ति रस्मान एकात्मानम भुज पुरा देह भेदो गतौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव दीप्ति सुलितम नवमे कृष्ण स्वरूपम। ये श्री रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी का श्लोक है। वे कहते हैं कि राधा भाव द्युति सुविदितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ये कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव धारण किए है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति, राधा रानी जो है कृष्ण की लादिनी शक्ति है। एकात्मानम अपि, वो पहले एक ही थे लेकिन भूवि पूरा देह भेदो गतो, लेकिन भेद वो दो उसमें प्रकट हो गए। और क्या हो गया बाद में चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम च एकम आप्तम, तो वापस ये दोनों जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो गए। ऐसे राधा भाव द्युति सुविदितम नवमे कृष्ण स्वरूपम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी लिखते हैं और उनके कर्चा से रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, और वही श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण का प्रारंभ करने के लिए शुरू करते हैं कि क्या था कारण। ये राधा भाव धारण करके श्रीमान गौरंग महाप्रभु क्या करने वाले थे, वो 6ठे श्लोक में बोला है। 6 अब ये ध्यान से देखो ये श्लोक की तरफ, तभी आपको समझेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी सर पटकोगे पत्थर के ऊपर तभी नहीं समझेगा। ये जो 6ठा श्लोक है
इसके तरफ आपको देखना पड़ेगा ध्यान पूर्वक। आप ठीक से कर्सर रखना प्रभु, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ, नहीं तो पूरी जिंदगी सर पटकोगे किसी दीवार के ऊपर, फिर भी नहीं समझेगा ये। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान एव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभावतः कीदृशम वेत्ति लोभा तद्भावाद्या समाग्नि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। भगवान हरि श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो है वो माता सची के गर्भ से प्रकट हुए। किस लिए? जो ऊपर 3 लाइन दिए है इसलिए। तो पहली लाइन में बोला है श्री राधाय प्रणय महिमा, तो राधा रानी के प्रणय की महिमा, राधा रानी का जो प्रेम है उसकी क्या महिमा है। एक बार राधा श्याम सुंदर जो है वृंदावन में नंदगांव के पास एक जगह है, बैठे थे, एकांत में बैठ के उनका विलास चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, एक भौरा आया, उस भौरे का नाम था मधु, और उसने राधा रानी का चरण देखा जो कमल से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। भौरे का और कमल का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो भौरा राधा रानी के चरण कमलों के तरफ मंडराने लगा, तो राधा रानी विचलित हो गई। श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगा। उनका एक नाम है मधुसूदन। तो मधु ने कहा मधुमंगल को, मधुमंगल उनका एक सखा है, उसको कहा हे मधु इस मधु को भगाओ। तो मधुमंगल ने हाथ में छड़ी जैसा कुछ तो ले लिया और उसके पीछे दौड़ाने लगे, भागने लगे और दूर उसको भगा के आ गया और कहा मधु, दूर चला गया। अभी मधुमंगल कहता है मधु नामक भ्रमर, और ये बता रहा है मधुसूदन को। तो एक वाक्य में उन्होंने कहा मधु दूर चला गया। जब राधा रानी ने वाक्य सुना मधुमंगल का तो बहुत विचलित हो गई। उसको लगा मधुसूदन चले गए, हालांकि कृष्ण उनके बगल में बैठे हैं। तो उनका ऐसा लगा कि कृष्ण चले गए हैं और वो रोने लगे। कृष्ण चले गए। कृष्ण को खोने का विचार भी राधा रानी को सहन नहीं होता, हालांकि कृष्ण उनके साथ है। उनको इतना भय रहता है कृष्ण को खोने का। और राधा रानी रोने लगी और उनकी आंखों से अश्रुधारा गंगा यमुना की तरफ बहने लगी। और श्याम सुंदर जब देख रहे थे, श्याम सुंदर ने जब राधा रानी का प्रेम देखा तो उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे। और ये जो दोनों का प्रेम है एक साथ एक सरोवर में रूप परिवर्तित हो गया, उसका नाम हो गया प्रेम सरोवर। राधा रानी का प्रेम बहुत महान है, बहुत महान है। कितना महान है ये कृष्ण भी नहीं जान सकते। सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि जीवों के हृदय की वांछाओं का लेखा जोखा रखते हैं, सब कुछ जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। अगर प्रभु जी लंबा प्रवचन देंगे तो मेरा डेटा जो है खत्म हो जाएगा यहाँ से लेकर के। अगर लेक्चर ज्यादा चलाएंगे तो मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। यहाँ तक कब खत्म करेंगे और खाएंगे या वीडियो ऑफ करके खाएंगे क्या? यहाँ से लेके भ्रष्टाचार हजारों करोड़ों का है, उसका खून और उसका अत्याचार, ये सब कुछ श्री कृष्ण भगवान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वे कृष्ण भगवान, श्लोक दिखाओ प्रभु। वे कृष्ण भगवान जो है ये 3 चीजें नहीं जानते थे। सब कुछ जानने वाले कृष्ण ये 3 चीजें नहीं जानते थे। कौन से? श्री राधाय प्रणय महिमा, राधा रानी का प्रेम कितना महान है। राधा रानी का प्रेम कितना महान है हम लोग जानते हो। कहानी नारद मुनि की। नारद मुनि ने श्याम सुंदर को पूछा कि आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त वृंदावन की गोपियां हैं। ऐसे कैसे? वो तो ग्वालन है, ना पढ़े लिखे है, ना वेद जानते हैं, ना कुछ ज्ञान है, कुछ भी नहीं आता उनको शास्त्रार्थ या वाद विवाद। वो कैसे? आप एक काम करना, सभी भक्तों के पास जाओ और उनको कहे कृष्ण को सरदर्द हुआ है। वो हर जगह जाते हैं, ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र वायु
हर जगह जाते हैं, गली गली जाते हैं, सारे चौराहे पे जाते हैं, भक्तों को मिलने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनको अपने चरणों की धूल देने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं नारद पागल हो गया क्या, हमें यहाँ नरक में जाना है, चल भाग यहाँ से। तो नारद मुनि गोपियों के पास आते हैं, राधा रानी बोलते हैं कि कैसे श्याम सुंदर, कहते हैं कि क्या बोलूं मैं आपको, उनको हेडेक हुआ है, सरदर्द हो रहा है, तो उनको आप लोगों के चरणों की धूल चाहिए, बस इसे ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हे ललिता विशाखा तुंग विद्या रंग देवी सुदेवी चंपकलता, हे इंदुलेखा, ये सभी लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, श्याम सुंदर का सरदर्द हो रहा है, उसको आपके चरणों के, हम सबके चरणों के धूल चाहिए। ये मेरी चुनरी है, दोनों ने चुनरी निकाल के रख दी, इसमें सब लोग डाल दो, सब लोग अपने अपने पैर झड़को, समझो पूरा उसके पोटली बनाकर बोले नारद मुनि जी ये लेके जाओ, ये कृष्ण के माथे पे लगाओ। तो नारद मुनि उठाए जा रहे थे, बोले आपको भय नहीं किस बात का, अरे ये कृष्ण के माथे पे लगाओगे आपके चरणों के धूल तो आप तो लोग नरक लोग जाएंगे। हाँ नारद मुनि हम जानते हैं हम लोग नरक जाएंगे, आपको वहां पे दंड भुगतना पड़ेगा। हाँ हम जानते हैं, तो भी आप दे रहे हो। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये लगाने से कृष्ण को एक सेकंड का भी रिलीफ मिले, सरदर्द और उनका कम हो जाए ना, तो हम हमेशा हमेशा के लिए नरक जाने के लिए तैयार हैं। ये है राधा रानी का प्रेम, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानईव, ये है राधा रानी। तो ऐसा क्यों, क्या है उसकी ग्रेटनेस, महानता, ये पहला प्रश्न है कृष्ण के मन में। पहले 3 कारण तो मैंने आपको बताया, अद्वैत आचार्य का है, युगावतार है और प्रेम बांटना, ये तो जनरल कारण हो गए, तो बाकी जनता का कल्याण करने के लिए आए। लेकिन उनका खुद का एक प्रोजेक्ट था, ऐसा कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये खुद का प्रोजेक्ट था। क्या था मन में श्याम सुंदर के, राधा रानी का प्रेम कितना महान है। और आगे स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय, वा मदीय, मेरे अंदर मदीय, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना आकर्षित करता है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना आकर्षित करता है, वो मैं देखना चाहता हूं। वो कृष्ण भी नहीं जानते, कृष्ण कितने सुंदर है कृष्ण भी नहीं जानते, और क्या विशेष है उनके अंदर वो कृष्ण भी नहीं जानते। वो दूसरा गुण राधा रानी के प्रेम की महिमा, दूसरा है उनके अंदर क्या गुण है वो, और तीसरा क्या है, सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशो वेति लोभात, और सौख्यम मद अनुभवता, और मेरे से प्रेम करने पर उनको क्या आनंद प्राप्त होता है, ये मूल प्रयोजन कहते हैं। कविराज गोस्वामी आगे 4थे अध्याय में कहते हैं, ये जो लाइन है हाईलाइटेड अभी, ये मूल प्रयोजन है चैतन्य महाप्रभु के प्रकटीकरण की, कि राधा रानी को क्या आनंद प्राप्त होता है मेरे से प्रेम करके। अभी हम नारद मुनि की उस लीला में देखे कि गोपियों को अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनको अगर किसी चीज की अपेक्षा है तो कृष्ण की प्रसन्नता, और कुछ नहीं चाहिए। वैयक्तिक उनके लिए 0, उनको कुछ नहीं चाहिए, स्वयं को कुछ नहीं चाहिए, केवल गोपियां एक ही चाहते कृष्ण की प्रसन्नता। और जब कृष्ण प्रसन्न है ये देखते हैं तो गोपियों की प्रसन्नता करोड़ों गुना बढ़ जाती है, उनको कुछ नहीं चाहिए। याद करो, वापस बोल रहा हूं, जैसे नारद मुनि की धूल की लीला में हम देखते हैं, कृष्ण के सिरदर्द की लीला में, कि गोपियों को स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गोपियां जो है जब कृष्ण का सिरदर्द एक क्षण के लिए दूर हो गया देखते तो उनका आनंद हजारों गुना बढ़ जाता है, करोड़ों गुना बढ़ जाता है। वो आनंद क्या है, उसको चखने के लिए, वो स्वाद चखने के लिए श्री श्याम सुंदर जो है वो राधा रानी का भाव धारण करके
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। क्योंकि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान के रूप में वो भाव नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें गोपी भर्तुर पद कमली और दास 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 अनुदास बनना होगा। भगवान बनके, बॉस बनके हम कभी चैतन्य महाप्रभु का मिशन समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें दास 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 अनुदास, किसका? गोपी भर्तुर पद कमलियो, गोपियों के जो भर्तुर रास बिहारी श्याम सुंदर है, उनके दासों का दासों का अनुदास, बहुत छोटा दास। तो ये 3 कारण है चैतन्य महाप्रभु के स्वयं के निजी अंतरंग के, राधा रानी के प्रेम की महिमा, दूसरा उनके अंदर क्या विशेष है, और तीसरा है क्या आनंद प्राप्त होता है राधा रानी को। हालांकि उनको कुछ आनंद नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को प्रसन्न करके उनको जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या है, उसको चखने के लिए, आस्वादन करने के लिए श्री श्याम सुंदर सब अवतारों के स्रोत स्वयं चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। कैसे? सची माता के गर्भ में, सची गर्भ सिंधु हरिंदु, हिंदू का मतलब है चंद्रमा। तो गौर चंद्र भगवान जो है, ये 3 मूल कारणों के साथ सची माता के गर्भ से प्रकट होकर श्री राधार भावे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कर लो प्रचार। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचारण के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो 6 कारण है, 3 अंतरंग और 3 बहिरंग, ये 6 के 6 कारण उन्होंने परिपूर्ण कर दिया। श्री चैतन्य मुखोगेर्णा हरे कृष्णे वर्ण कहा मज्जयंतो जगत प्रेम नाम विजयंता तद अव्ययः। चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से जो हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हुआ है, पूरे जगत को उन्होंने डुबा दिया है। उन्होंने नाम प्रेम की माला लाकर पूरी दुनिया को उन्होंने पहनाई, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 श्लोकों के मंगलाचरण में 14 में से 6 जो श्लोक है, उसमें पहले 4 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। तीसरा अध्याय जो है महाप्रभु के बहिरंग कारण बताता है, और जो चौथा अध्याय है वो महाप्रभु के अंतरंग कारण बहुत विस्तार से बताता है। आपको कभी समय मिलेगा तो पढ़ने का प्रयास करिए, केवल प्रयास कर सकते, पूरा हम समझ नहीं सकते। अरे श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी को समझ नहीं सकते तो हम क्या समझ सकेंगे। हम केवल उस जो भक्ति रसामृत सिंधु है राधा रानी का, उसके किनारे खड़े रह के कुछ बूंदे भी हमारे ऊपर उड़ जाए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। स्वयं कविराज गोस्वामी ऐसा कहते हैं, उसमें से हम कुछ छींटे हमारे ऊपर आ जाए तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू बोलिए। प्रभु जी, बहुत आज बहुत क्लियर हो गया। लास्ट क्लास में आपने बोला था लेकिन इतना क्लियर नहीं हुआ था, आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, रिपीट हो गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हरे यू। प्रवीणा कंथारिया, प्रवीणा कंकरिया माता जी, यस, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कहाँ पर प्रणाम। है? दंडवत प्रणाम। आप कौन से लोक में है? हाँ, जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, जैसे कलयुग में कल्कि अवतार में आने वाले हैं, तो हर युग में भगवान कल्कि अवतार लेते हैं। हाँ, जितने भी कल्कि अवतार राम भगवान, कृष्ण भगवान हर युग में हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कृष्ण है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, हर द्वापर युग में नहीं आते, हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते ऐसे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु की कितनी बुक्स है? मतलब ये चैतन्य रसामृत और चैतन्य मुख्य है चैतन्य चरितामृत, दूसरा है चैतन्य भागवत, तीसरा है चैतन्य मंगल, और एक है चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, और एक है चैतन्य चंद्रामृत, और एक है श्री चैतन्य चरित,
और एक है चैतन्य महाकाव्य। कितने हैं? जितने सागर की लहरें हैं उतने ग्रंथ है। ठीक है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद। गोप विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कहाँ पर है आप माता जी? मैं इधर ही हूँ प्रभु जी, आपके सामने। वीडियो हाँ वीडियो ऑन कीजिए बोले। ठीक है, चालू करिए, बोलिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि राधा रानी भगवान के सामने इतना मान क्यों करती हैं, जबकि उनको मालूम है कि वो उनको छोड़ के चले जाएंगे। वो राधा रानी की मान लीला कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। उनका खुद का कुछ अहंकार नहीं है। राधा रानी की जो मान लीला है वो उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाती है। जब राधा रानी कृष्ण के ऊपर गुस्सा करती है ना तो कृष्ण को बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण। कभी कभी, अभी मुझे तो ये अनुभव नहीं है, लेकिन जो पति पत्नी होते हैं तो उनमें भी ये लीला चालू रहती है। कभी कभी वो गुस्से हो जाते हैं तो जानबूझकर भी करते हैं कई बार, या हाँ, मैंने खाली सुना है। तो इसमें एक विशेष रस है। ये रस वही लोग जानते हैं, और खास करके श्री कृष्ण और राधा रानी इसका अच्छे से आस्वादन लेते हैं। कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है जब राधा रानी उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। इसका मूल कारण यह है क्योंकि गुस्सा जो है वो अपने व्यक्ति पर, हकदार पर हम गुस्सा जताते हैं। हम गुस्सा किसके ऊपर करते हैं? अपने व्यक्ति पर। जो पराया होता है उसके साथ हाय हेलो फॉर्मली चलते हैं, लेकिन गुस्सा तो अपने लोगों पर किया जाता है ना। तो कृष्ण को बहुत प्रसन्न हो जाती है कि राधा रानी मुझे अपना समझती है, ये कारण है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। Anybody else would like to ask question? Kindly raise the hand. Prabhuji, last time when Mataji had sent on the WhatsApp, Oh yes, I forgot. What is that the Mataji question? is not there, but you can reply What so is the that question? she has asked the Narayana avatar where exactly will fit in that chart. अभी वो माता जी नहीं है, जब वो रहेंगे तो दिखाओ वो चार्ट सेव करके रखो Okay. और मुझे याद करो। हाँ ठीक है। Okay. नेक्स्ट टाइम वो माता जी को पूछिए, आप आइए करके, आपको याद किया गया था। Normally she comes, today she is not there. रूपा माता जी बाई चांस दूसरा नाम पे है तो हैंड रेज कीजिए। रूपा भंडारकर माता जी। ओके, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलेगा। So if no questions are there, all are unmuted. You can tell 3 times Hari Bol. Kaustubh Prabhu ji, would you like to add anything? प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं आपके लिए प्रसाद लाया था। Kaustubh Prabhu ji, क्या लाए? प्रसाद आपके लिए। प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी प्रसाद लाया आपके लिए। हरि बोल। थैंक यू हरि बोल। कहाँ है प्रसाद? हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल प्रभु, कहाँ प्रसाद है? नेक्स्ट टाइम हलवा पूरी कचौड़े मालपुआ वगैरह सब लेके आओ। ऐसे फलों से काम नहीं होने वाला। वो परम शक्ति का काम है। हाँ नहीं, वो जब भी है नेक्स्ट टाइम आप लेके आना। ये फल मूल सब कंद मूल जो हिमालय के बाबा खाते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है, एक भक्त 5-5 लोगों का प्रसाद खाता है। उसमें भी हलवा पूरी मालपुआ कचौरी समोसा राजभोग ये सब खाने वाले लोग हैं, तो सब लेके आओ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण भजन प्रभु जी धन्यवाद की प्रभु जी। जय। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल to all devotees. कौस्तुभ प्रभु जी